Hello friends, welcome to Helping Brains. This is our third lecture in our philosophy series. Okay, so in first two lectures what we have covered, we have seen some introduction regarding philosophy, which type of subject is this, uh, how to uh, how to proceed. Okay, so we have seen that philosophy is highly conceptual. The only thing matter is concepts. If you are clear with your concepts, then it is possible to answer any question, whether it is related to UPSC or state services or JNU exam or any entrance exam. So philosophy is conceptual first thing. I already covered the syllabus, that what is the syllabus for UPSC. Along with that, I also covered the reference books which you need to consult. But if you are watching all the videos, okay, then there is no need to consult any book. You can write any answer if you are understanding whatever I am teaching you. Okay, so the main thing is that you need to understand the concept. Everything revolves around the concept in philosophy. Okay, if you are comfortable with the concepts that what a philosopher has said about anything. Okay, suppose we are in Moore, in front of you have Moore, Russell and early Wittgenstein. So the syllabus says defense of common sense. If you are comfortable that what Moore has said about defense of common sense, how other philosophers have refuted it, you can write any answer. So it is just like if you know any mathematical formula, then after that you can apply that formula in any question. Similar case is here. If you are comfortable with the concepts, and my objective is that you will be able to understand all the philosophical concepts in a crystal cut manner. You will be able to understand all the concepts. When I will finish this series, you will be able to teach philosophy. You will be able to teach philosophy. You will have all the knowledge of philosophy, of all the concepts. If someone asks you that what you know about Plato's ideas, what you know about Aristotle's form and matter, what you know about Aristotle's potentiality and actuality, what you know about Descartes philosophy, you will be able to answer each and every question. If you will see all the questions of UPSC and other services, then you will be able to answer every question. So the main thing is that I am emphasizing only on one thing, that is concepts. Okay. In my lectures, I am using bilingual language. That is, sometimes I use Hindi, sometimes I use English. So even if you are from English medium, then basically I made all these slides, okay, in English. And if you are from Hindi medium, then I will explain things in Hindi also. Okay. So what I am saying, just listen it very carefully. You will be able to understand each and everything. And most of the things related to your exam, most of the things I have written in these slides. So if you once go through what I'm saying, and after that you have go through all these slides, then it means that you will be well prepared in philosophy. Okay, so in first you can see my first two lectures, ठीक है, on my channel, ठीक है. आपको दोनों मिल जाएंगे in my you go to playlist philosophy and there you will find both the lectures. So now today we will see some more concepts in philosophy. Till now we have not started our main topic, means we are just in the beginning. We are just making yourself uh, aware about all the concepts. Okay, you must be acquainted with all the concepts, that what are the concepts, what is philosophy, what is metaphysics, what is epistemology. Okay, so we have covered up to, yeah, we have covered up to this point in last class. Okay, in second lecture we have covered up to this ethics and religion. So today I am starting from metaphysics. Okay, so metaphysics is basically your theory of reality or theory of transcendental entities. Okay, I already discussed all these things, okay, in my previous lectures, that what is reality, what is transcendental entity. Now let us proceed further. Basically in our philosophy we have discussed two things. There are two theories which are very important. Okay, all the questions, all the concepts revolve around these two concepts. That is, one is metaphysics, second is epistemology. So if I will say metaphysics, here you can see metaphysics. Metaphysics means one is physics
Physics means your science. What science does? Science studies about this universe. Okay, how this universe has been made, Big Bang theory, all these things. Now, physics is the study about the universe, and the study of physics itself is known as metaphysics. Means metaphysics is science of all sciences. फिजिक्स तो सिर्फ इस यूनिवर्स के बारे में पता करता है, लेकिन फिजिक्स जो चीजें पढ़ रहा है उनके बारे में भी जो बात करता है वो करता है आपका मेटाफिजिक्स। यानी मेटाफिजिक्स आपकी क्या है, एक तरह से थियरी ऑफ रियलिटी है। थियरी ऑफ रियलिटी मतलब जितनी भी इस वर्ल्ड में चीजें हैं, ठीक है, और इस वर्ल्ड के बाहर भी चीजें हैं जो, उनके बारे में जो स्टडी है, मीन्स मेटाफिजिक्स इज द थियरी ऑफ रियलिटी। और ये जो थियरी ऑफ रियलिटी है किस चीज के साथ डील करती है? देखो, अब रियलिटीज आपकी दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अल्टीमेट रियलिटीज एंड सेकंड इज नेचर। मतलब वन इज नंबर, सेकंड इज नेचर। समझिए, नंबर का मतलब ये है कि अल्टीमेट रियलिटी के बारे में हमें पता होता है कि अल्टीमेट रियलिटी कितनी है। ओके, अल्टीमेट रियलिटी का मतलब क्या है? अल्टीमेट रियलिटी वो रियलिटी है जिससे ये वर्ल्ड बना है। अब हमें ये देखना है कि वो अल्टीमेट रियलिटी कितनी है। पहला नंबर, और दूसरा उसका नेचर क्या है। नंबर में अब एक अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है जिससे ये वर्ल्ड बना हो, दो अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है। नेचर वो या तो आपकी कॉन्शियस हो सकती है, या फिर मतलब लिविंग हो सकती है, या फिर आपकी अनकॉन्शियस हो सकती है, मेटेरियल, नॉन लिविंग। अब यही चीजें हैं यहाँ पे आपके अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने कंसेप्ट दिए हैं। जैसे कोई फिलोसफर होगा उसने नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एक मानी होगी, कोई ऐसा होगा जिसने दो मानी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं कि कई फिलोसफर्स ऐसे हैं, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं दुनिया जो है ये, दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। So if you will say that this world has been created by God, it means you believe that there is only one ultimate reality and that ultimate reality is God. So according to you, the number of ultimate reality is one. Okay. Second thing, if I will ask you what is the nature of God, so you will say God is conscious. So what is the nature? Conscious. So if what your metaphysics is, there is only one ultimate reality, that is God. God has created this world and God is conscious in nature. So this is your metaphysical theory. So basically metaphysical theory, metaphysics concerned with theory of reality, and in theory of reality we talk about two things: number of ultimate realities, that can be one, that can be two, that can be more than two; nature of ultimate realities, that can be conscious, that can be material, or that can be both. Okay, so metaphysics में हम इन दो चीजों की बात करते हैं। अब देखो, ultimate reality here refers to that reality from which the universe has been created, or who has created the universe. Okay, clear? The important content of metaphysics are, क्या क्या डिस्कस करते हैं, ये आर में आप ई लगा लीजिएगा। ओके, गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल, ब्रह्म, जीव, जगत, प्रकृति, पुरुष, लिबरेशन, एटम, सब्सटेंस, रियलिटी, कॉजल थियरी, एक्सेट्रा। ये मेटाफिजिक्स के पार्ट है जो मैंने पहले डिस्कस किया है आपके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेटाफिजिक्स के बारे में लिखो चरवाका की, या बोला जाए जैना की मेटाफिजिक्स के बारे में लिखो, तो आपको क्या लिखना है कि इन चीजों के बारे में क्या बोला है जैना ने। और आप जब नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज की बात करोगे, नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज की बात करोगे, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे अभी मैंने बोला गॉड, गॉड मैंने बोला एक ही अल्टीमेट रियलिटी, गॉड ने इस जगत को क्रिएट किया। वर्ल्ड और जगत सेम चीज है, यानी कि इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये मेटाफिजिक्स के पार्ट है ना दोनों के दोनों। तो यानी कि नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज और नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज में ये सारी चीजें आ जाती है। तो इसलिए कोई भी फिलोसफर की मेटाफिजिक्स पूछेंगे तो हमें इन चीजों के बारे में लिखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाफिजिक्स, इट मींस नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज एंड नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको बोला नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है। अगर नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज ओनली 1 है तो हम उसको बोलते हैं मोनिज्म। मोनिज्म मींस देयर इज ओनली 1, मोनो का मतलब होता है 1। तो अगर किसी फिलोसफर ने माना कि सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटी है बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ दिस लाइफ एंड यूनिवर्स, वी से दैट फिलोसफर इज ए मोनिस्ट फिलोसफर। और मोनिस्ट फिलोसफर जो आपके इंडियन फिलोसफी में हम पढ़ेंगे, एक तो शंकर पढ़ेंगे, ठीक है। शंकर ने क्या माना है, ब्रह्म। देखो ब्रह्म को ऐसे लिख सकते हैं BRAHMAN, BRAHAM लिख सकते हैं, BRAHMA लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है तीनों में से। आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे ये देखोगे लिखा हुआ, कहीं पे ये देखोगे, कहीं पे ये देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, ऑल दिस थिंग्स आर सेम। आपको ये पसंद है ये लिखो, ये पसंद है ये लिखो, ये पसंद है ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम ये यूज करते हैं फर्स्ट वन। तो शंकर जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि शंकर ने सिर्फ एक अल्टीमेट रियलिटी मानी, दैट इज ब्रह्म।
So according to Shankar, Brahm is the only ultimate reality. And regarding Brahm, Shankar has said, Brahm Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahmev Napar. Okay, so this is the famous saying. Basically, these two lines in Sanskrit defines the crux of the Shankar's philosophy. Shankar has said, Brahm Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahmev Napar. If I translate it in English, then it means Brahm is the only ultimate reality. Brahm is the only ultimate reality. This Jagat is ultimately false, and Jiva is not separate from Brahm, but it is identical to Brahm. और यहाँ पे ब्रह्म का मतलब गॉड भी नहीं है, ठीक है, ब्रह्म गॉड से भी ऊपर है, गॉड से भी एक ऊपर उसने चीज मानी है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, इम्पर्सनलिस्टिक गॉड। तो जब हम शंकर पढ़ेंगे तो आपको ये ब्रह्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रह्म विचार ऑफ शंकर, तो वहां पे जाके आपको पता चलेगा ये ब्रह्म क्या है। तो यहाँ पे आप अभी इतना समझ लो कि ब्रह्म आपका एक गॉड से भी हायर अल्टीमेट रिलेटिव उसने मानी है। तो ये हम शंकराचार्य की फिलॉसफी में पढ़ेंगे। ओके, इसलिए शंकराचार्य को अगर हम बोले तो उसने सिर्फ एक आपकी अल्टीमेट रिलेटिव मानी है। ऐसे अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में चले जाओ, स्पिनोजा, स्पिनोजा ने गॉड को माना है। अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, गॉड इज एवरीथिंग, इसलिए बोला जाता है स्पिनोजा को गॉड्स इंटॉक्सिकेटेड फिलोसफर। अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज एवरीथिंग, and regarding God he has said every determination is negation, so that we will see in Spinoza। okay, डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। now note, those who believe in monism mostly accept creation theory। creation theory says that this world is created by God। समझो आप, कोई भी अगर ये मानता है कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, तो वो एक अल्टीमेट रियलिटी आप देख लो, सब लोग गॉड को ही मानते हैं। अगर आप में से भी कोई होगा, आपसे पूछा जाए दुनिया कैसे बनी, अगर कोई रिलीजियस पर्सन है वो बोलता है भगवान ने बनाई, तो उसके हिसाब से सब चीजें किससे बनी है, गॉड ने बनाई है। तो देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज गॉड। तो बेसिकली जो क्रिएशन थियरी है, क्रिएशन थियरी जो मानते लोग वो ये मानते हैं कि गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर थिंग हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज बेसिकली डन बाय गॉड। तो क्रिएशन थियरी को जो सपोर्ट करते हैं वो मोनिस्ट होते हैं अधिकतर, ठीक है। अब आपके इंडियन फिलोसफी हमने देख लिया, वेस्टर्न। अब ऐसे लोग जो दो अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं, अब कुछ ने वन मानी तो वो हमने देख लिया, हम डिस्कस करेंगे आगे। जो दो मानते हैं, तो दो का मतलब क्या होता है, डुअलिज्म। डुअल मीन्स टू और इज मीन्स थियरी, जिन्होंने दो अल्टीमेट रियलिटी मानी। इनके हिसाब से टू अल्टीमेट रियलिटीज बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ दिस लाइफ एंड वर्ल्ड। इसके सपोर्टर्स कौन से? इंडियन फिलोसफी में मध्वाचार्य, ठीक है। जो हम पढ़ेंगे वेदांता, वेदांता में हमें तीन फिलोसफर पढ़ने हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य ने दो अल्टीमेट रियलिटी मानी, कौन सी? एक तो इंडिपेंडेंट मानी है जिसे हम गॉड कहते हैं, उसने गॉड बोला है, एंड डिपेंडेंट रियलिटी। डिपेंडेंट रियलिटी में उसने दो माना है, एक जीव और दूसरा जगत। जीव का मतलब चित्ता, चित्ता मतलब हम लोग है ना, सोल, और जगत का मतलब अचित पार्ट, मतलब अनकॉन्शियस पार्ट। तो उसके हिसाब से दो अल्टीमेट रियलिटी है, एक आपकी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में गॉड आता है, उसके हिसाब से गॉड इंडिपेंडेंट रियलिटी है। डिटेल में हम ये मध्वाचार्य में पढ़ेंगे। और डिपेंडेंट में कौन सी है? जीव एंड जगत, ठीक है। जीव को वहां चित्ता भी बोलते हैं और जगत को अचित्त पार्ट भी बोलते हैं। ये दोनों क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि जीव और जगत अल्टीमेटली आपका किस पे डिपेंडेंट है? गॉड पे। तो उसने दो आपकी अल्टीमेट रियलिटी मानी है, एक गॉड मानी है जिसको उसने इंडिपेंडेंट रियलिटी नाम दिया है, और दूसरी जो मानी है उसने डिपेंडेंट रियलिटी मानी है जिसको नाम जीव या चित्त बोल सकते हो, और दूसरा जगत या अचित्त बोल सकते हो। जीव और चित्त में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो ये हम वहां पे देखेंगे जब हम मध्वाचार्य पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी मैं ये चीजें एक साथ लेके कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। नेक्स्ट इज सांख्या। सांख्य देखो, आप सांख्या को ऐसे एम भी लिख सकते हो, ऐसे एन भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो मध्वा हैज एक्सेप्टेड टू अल्टीमेट रियलिटीज, वन इज इंडिपेंडेंट रियलिटी दैट इज गॉड, एंड सेकंड इज डिपेंडेंट दैट इज जीव एंड जगत। सांख्या जो है आपका, ही हैज एक्सेप्टेड टू अल्टीमेट रियलिटीज, वन इज प्रकृति एंड सेकंड इज पुरुष। ओके, प्रकृति एंड पुरुष। अब आप देखो यहाँ पे मेटाफिजिक्स में हम दो चीजों की बात कर रहे थे ना, नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज एंड नेचर। यहां देखो आप, मध्वा में गॉड कैसा होता है आपका? गॉड का नेचर कैसा है? कॉन्शियस। जीव, जीव यानी कि हम, सोल, उसका नेचर कैसा है? कॉन्शियस। जगत यानी कि ये वर्ल्ड, वर्ल्ड कैसा है? अनकॉन्शियस। यानी आपकी जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नंबर और नेचर, इन दो के साथ ही आपकी मेटाफिजिक्स डील करती है। अब सांख्या में देख लो, सीन सांख्या, प्रकृति इज अनकॉन्शियस, प्रकृति मतलब ये जो मटेरियल है वो, और पुरुषा मीन्स, यहाँ पे पुरुषा को आप ऐसे समझ लो जीव, जो हमारी सोल है, ठीक है, उसको इसने पुरुषा बोला है। तो पुरुषा कैसा होगा आपका? कॉन्शियस। तो अगर हम बोले कि इसने अल्टीमेट रियलिटीज का नंबर कितना है? 2, नेचर क्या है? बोथ कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस, दोनों तरह की मानी है।
लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे शंकर, शंकर की जो नेचर अल्टीमेट रियलिटी का, ब्रह्म कैसा है आपका, ब्रह्म इज कॉन्शियस। स्पिनोजा का देखो तो गॉड इज कॉन्शियस इन नेचर। इट मीन्स फॉर देम the ultimate reality is one and that is conscious in nature, but for your Madhva, ultimate realities are two and they are conscious as well as unconscious। गॉड आपका कॉन्शियस है, जीव आपकी कॉन्शियस है, जगत आपका अनकॉन्शियस है। सांख्या में देख लो प्रकृति इज कॉन्शियस, प्रकृति इज अनकॉन्शियस एंड पुरुषा इज कॉन्शियस। वेस्टर्न फिलोसफी में आओ तो डेकार्ट, ओके, इसमें एस साइलेंट है दोनों, ये भी एस भी साइलेंट है, ये एस भी साइलेंट है, इट इज डेकार्ट, ओके। सो डेकार्ट ने दो अल्टीमेट रियलिटीज मानी है, माइंड एंड बॉडी। अब माइंड आपका कैसा है, माइंड इज कॉन्शियस इन नेचर वेयर एज बॉडी इज मेटेरियल इन नेचर। अब दो से ज्यादा जिन्होंने मानी है, दोज philosophers who have accepted more than two ultimate realities, they are known as pluralistic philosopher। So plural means many and is means theory। So many ultimate realities behind the origin of this life and world, and the supporters are Indian philosophy न्याय वैशेषिका। न्याय वैशेषिका को हम शॉर्ट में एनवी लिखेंगे। दे हैव एक्सेप्टेड एटम्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, ओके। उनके हिसाब से दुनिया बनी है अर्थ, एयर, वाटर और फायर से बनी है। यहाँ पे देखो फिफ्थ एलिमेंट नहीं लिया है उन्होंने, आकाश को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है वो हम न्याय वैशेषिका में डिस्कस करेंगे। चरवाका ने भी एटम्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, इसने भी आकाश को नहीं लिया है, ओके। जैनिज्म, अगर जैनिज्म में आप देखो तो उन्होंने इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सोल्स मानी है। उनके हिसाब से दुनिया में बहुत सारी सोल्स हैं और इन्यूमरेबल मटेरियल एलिमेंट्स हैं। जैसे इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सोल्स कैसे हो गई, मेरी हो गई सोल, माई सोल, योर सोल, ठीक है, किसी और पर्सन की सोल। ऐसे इन्यूमरेबल मटेरियल एलिमेंट्स है। अभी मैं आपको लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, ये एक मटेरियल एलिमेंट है, मेरे पास मोबाइल है, वो एक मटेरियल एलिमेंट है, ठीक है। फिर आपका मेरे यहाँ पे पानी का गिलास रखा है, ये एक मटेरियल एलिमेंट है। तो यहाँ पे टेबल रखी है, चेयर रखी है, ये सब मटेरियल एलिमेंट है। तो जब उसने इतनी अल्टीमेट रियलिटीज मानी है, इसका मतलब वो कैसा फिलोसफर है, प्लूरलिस्टिक। वेस्टर्न फिलोसफी में लाइबनिज ने जो माना है वो है मोनेड्स। देखो लाइबनिज ने एक नया कंसेप्ट दिया मोनेड्स, और उसकी पूरी फिलोसफी इस मोनेड्स के आसपास ही घूमती है। तो मोनेड्स आर नथिंग बट कॉन्शियस एटम्स। जो आपके कॉन्शियस एटम्स होते हैं उनको उसने मोनेड्स बोला है। लाइबनिज फिलोसफी इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइबनिज के हिसाब से इस दुनिया में हर चीज कॉन्शियस है, एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस। उसके हिसाब से जो अभी मैं लैपटॉप पढ़ा रहा हूं इसमें भी कॉन्शियसनेस है, मुझ में भी कॉन्शियसनेस है, एक मोबाइल में भी कॉन्शियसनेस है। तो इसको थियरी को, बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी, हम लाइबनिज में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से मोनेड्स अल्टीमेट रियलिटी, हर चीज मोनेड्स से बनी है। और मोनेड्स क्या होते हैं, मोनेड्स आर नथिंग बट दे आर कॉन्शियस एटम्स। देखो चरवाका ने एटम्स को माना, न्याय वैशेषिका ने एटम्स को माना, साइंस भी एटम्स को मानती है, लेकिन इनके एटम्स कैसे हैं आपके, इनके एटम्स अनकॉन्शियस है। उन्हीं एटम्स को लाइबनिज ने मोनेड्स का नाम दिया, और मोनेड्स आपके कॉन्शियस है। लाइबनिज के हिसाब से हम में भी कॉन्शियसनेस है, प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस है, एनिमल्स में भी कॉन्शियसनेस है, इवन मेटेरियल एलिमेंट्स में भी कॉन्शियसनेस है, टेबल, चेयर, सब में कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी आ जाएगी ना फिर, कि आपको फिर वो मटेरियल क्यों दिखाई देते हैं। तो वो हम लाइब्रेरीज में डिटेल में उसको हम देखेंगे कि इसने कैसे उसको समझाया। मेटेरिया प्राइमा और मेटेरिया सिकुंडा इसने एक थियरी दी है, उसके बेसिस पे इसने समझाया कि मोनेड्स आपके ये मटेरियल एलिमेंट्स में कॉन्शियसनेस होते हुए भी वो हमें मटेरियल क्यों दिखाई देते हैं। आपने मूवीज देखी है, एनिमेटेड मूवीज में टेबल भी बात करती है, चेयर भी बात करती है। तो आप ऐसे समझ लो कि लाइबनिज की जो थियरी है ना, वो इसी तरह की थियरी है। उसके हिसाब से हर चीज में आपकी जान है, ठीक है, हर चीज कॉन्शियस है। कुछ में कम कॉन्शियसनेस है, कुछ में ज्यादा कॉन्शियसनेस है। तो जिसमें ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी उसमें ज्यादा नॉलेज होगी, और इसमें इसने सबसे ऊपर गॉड को रखा है। गॉड आपका सबसे सुप्रीम मोनेड है, क्योंकि गॉड को सबकी नॉलेज होती है। तो हम लाइब्रेरीज में देखेंगे किस तरीके से इसने हायरार्की बनाई है। नीचे मटेरियल एलिमेंट, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, फिर ह्यूमन बींग्स, और सबसे ऊपर गॉड, ओके। अब नेचर, पहले हमने नंबर की बात कर ली, अब नेचर की बात कर लेते हैं। तो नेचर कैसा हो सकता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। या तो मटेरियल होगा या स्पिरिचुअल होगा। स्पिरिचुअल को हम कॉन्शियस भी बोलते हैं और मटेरियल को अनकॉन्शियस भी बोलते हैं, या दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों मतलब एक फिलोसफर ने जो अल्टीमेट रियलिटी मानी है वो मटेरियल हो सकती है सिर्फ, या सिर्फ स्पिरिचुअल हो सकती है, या दोनों हो सकती है। देखो जैसे न्याय वैशेषिका ने जो माने एटम्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये क्या है, मटेरियल है। चरवाका ने जो माने ये क्या है, मटेरियल है। जैनिज्म ने जो माने, आपका इंडिविजुअल सोर्स तो आपकी कॉन्शियस हो गई, और मटेरियल एलिमेंट्स क्या हो गए आपके, मटेरियल हो गए। यानी दोनों तरह की मानी है। अगर लाइब्रेरीज को देखो तो मोनेड्स माना है, मोनेड्स क्या आपकी कॉन्शियस है। तो यानी जो नेचर अल्टीमेट रियलिटी का, वो आपका कॉन्शियस हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। जैसे चरवाका है, चरवाका में ओनली मटेरियल चरवाका, अभी मैंने पीछे आपको समझाया। ओनली स्पिरिचुअल शंकर, देख लिया हमने, स्पिनोजा, लाइबनिज। बोध डेकार्ट, डेकार्ट ने क्या क्या माना है आपका, माइंड और बॉडी। माइंड आपका
कॉन्शियस और बॉडी आपकी मटेरियल। मध्वाचार्य ने क्या माना है, इंडिपेंडेंट रियलिटी गॉड दैट इज कॉन्शियस, डिपेंडेंट में आपका जीव इज कॉन्शियस, जगत इज अनकॉन्शियस। सांख्य ने प्रकृति इज मटेरियल और अनकॉन्शियस एंड योर पुरुषा इज कॉन्शियस। ओके, सो आपका मेटाफिजिक्स डील्स विथ नंबर एंड नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज। ओके, नाउ मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म देखिए। ओके, देयर आर टू मोर कंसेप्ट्स, मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। क्या कहते हैं, व्हेन अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल मैटर इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट स्टफ। जब मैटर को ही आप अल्टीमेट स्टफ मानो, जैसे अगर मैं चरवाका की थ्योरी लूं तो उसने सिर्फ मेटेरियलिज्म को माना है, अगर न्याय को देखें उसमें भी मेटेरियलिज्म है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म क्या होगा, आप भले से उसकी कार्ल मार्क्स की थ्योरी ले लो, वो भी मेटेरियलिज्म है क्योंकि वो मटेरियल उसकी बात करता है मेटेरियलिज्म की। ओके, स्पिरिचुअल आपका साइंस ले लो, साइंस भी मेटेरियलिज्म की बात करता है, गॉड में बिलीव नहीं करता, सोल में बिलीव नहीं करता। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब व्हेन अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल इन नेचर, दैट इज स्पिरिट और कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट स्टफ। फॉर एग्जांपल अभी स्पिनोजा आपका गॉड, ब्रह्म आपका शंकर। ओके, both when ultimate reality is accepted by philosopher are material and conscious both. For example डेकार्ट आपका संख्या। ओके, तो अगर किसी ने सिर्फ मटेरियल को अल्टीमेट रियलिटी माना है, मटेरियल है वो, तो उसकी थ्योरी को हम बोलेंगे मटेरियलिज्म। किसी ने अगर आपकी को स्पिरिचुअल एंटिटी को माना तो स्पिरिचुअलिज्म, और अगर दोनों को माना तो बोध। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो संख्या, संख्या ने अल्टीमेट रियलिटीज कितनी मानी है, नंबर 2, तो हम बोलेंगे कि उसकी थ्योरी कैसी है आपकी, ड्यूअलिस्टिक। लेकिन उसने मानी कैसी है, ड्यूअलिस्टिक है, लेकिन संख्या में आपका प्रकृति भी है और साथ में आपका पुरुष भी है। यानी ड्यूअलिस्टिक के साथ साथ वो क्या मानता है, दोनों चीजों को मानता है इनको। ठीक है, तो ड्यूअलिस्टिक है, और अगर नंबर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से देखो तो सांख्य फिलॉसफी इज मेटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअलिस्टिक। इज इट क्लियर? तो आपका नंबर और नेचर की बात करते हैं हम मेटाफिजिक्स में। तो ये देखो मैंने इसके लिए आपके लिए चार्ट बनाया है। नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज के बेसिस पे मोनिज्म, वन अल्टीमेट रियलिटी, डुअलिज्म, टू अल्टीमेट रियलिटीज, प्लूरलिज्म, मैनी अल्टीमेट रियलिटीज। नेचर के बेसिस पे मेटेरियलिज्म सिर्फ चरवाका, स्पिरिचुअलिज्म शंकर, स्पिनोजा, लाइबनिज, और बोध में सांख्या, मध्वा एंड डेकार्ट। ओके, तो फुली ये चार्ट आप देख के जो पीछे मैंने समझाया वही आपको मैंने ये कंसोलिडेट कर दिया। देखिए, बोध में सांख्या, और मैंने इलेबोरेट किया, सांख्या में प्रकृति इज मटेरियल, पुरुषा इज कॉन्शियस। मध्वा में इंडिपेंडेंट रियलिटी गॉड इज कॉन्शियस। डिपेंडेंट में जीवा, जिसको चित्ता भी बोलते हैं, इज कॉन्शियस। जगत अचित मटेरियल। डेकार्ट में माइंड इज कॉन्शियस, बॉडी इज मटेरियल। ओके, so first theory is clear, that is metaphysics. Now epistemology, second pillar. There are two pillars, metaphysics and epistemology. If these concepts are clear to you, both these concepts are clear to you, then philosophy is very easy for you. You will be able to understand each and everything. अगर मैं बोलूं आपको इंडियन फिलोसफी में आपको एक दिन में पढ़ा सकता हूं पूरी, अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है। It is very easy. Okay, philosophy is very easy. It is all about concepts, and you will be able to answer any question. जो अभी इस साल आया है पेपर में, पिछले साल आया था, उससे पिछले साल आएगा। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला ये थियरी ऑफ नॉलेज है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग थिंग्स। देखो, थियरी ऑफ नॉलेज है तो क्या क्या चीजों को लेगी, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। जैसे सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, मान लो मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ता हूं, तो मैं बोलूंगा मेरा सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज लक्ष्मीकांत है। मुझे अगर एनवायरमेंट पढ़नी है तो मैं शंकर आईएएस की बुक पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा मेरा सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज शंकर है। अगर मुझे वेदास के बारे में पढ़ना है तो मैं वेदास पढ़ूंगा। अगर मुझे रिलीजन के बारे में पढ़ना है मैं भगवत गीता पढ़ूंगा। ऐसा तो नहीं है ना आपको पॉलिटी पढ़नी है और आप शंकर की बुक उठा लोगे आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। क्यों? क्योंकि वहां से आपको जो वैलिड नॉलेज मिलेगी वो एनवायरमेंट से रिलेटेड मिलेगी। तो आपको जो नॉलेज चाहिए उस हिसाब से आपका सोर्स होना चाहिए, तब हम बोलते हैं वो सोर्स वैलिड नॉलेज है। नेचर, वैलिड नॉलेज का आपका नेचर कैसा है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस, वैलिड नॉलेज की लिमिटेशंस भी होती है कुछ, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे अभी काम का है, फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है आपके, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट वी विल सी इन मीमांसा। मीमांसा में डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी मुझे क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। हर नॉलेज की देखो लिमिटेशंस होती है। कहीं ना कहीं जाके आपकी नॉलेज, जैसे मुझे मान लो रोप की जगह रोप दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार मुझे रोप की जगह स्नेक भी दिखाई देता है, देता है नहीं देता है, गलती से अंधेरे में मैंने देखा, या फिर कई बार आप रोप को स्नेक की तरह समझ लेते हो। यानी आपकी जो नॉलेज है, कई बार आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो उस चीज को आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। यानी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज तो आपका है, लेकिन कई बार वो आपकी उसकी लिमिटेशंस होती है हर चीज की। अब लक्ष्मीकांत आप पढ़ के अगर आपने पॉलिटी पढ़ी तो आप उतनी ही का जवाब दे पाओगे जितनी लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है। यानी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज तो होता है। जैसे अभी आपको मैं फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ, आपका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूँ अभी आप उन्हीं चीजों का जवाब तो दे पाओगे।
इसके अलावा अगर कोई आपसे आउट ऑफ सिलेबस चीज पूछ लेगा वो आप नहीं बता पाओगे, यानी हर चीज की लिमिटेशंस होती है। फिर वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, हमारी नॉलेज वैलिड है या नहीं है, इसके बारे में आपकी जो थियरी है वो मीमांसा ने दिया, वो मीमांसा में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो हमारे काम का है फर्स्ट एंड फिफ्थ। ओके, तो अभी हम फर्स्ट एंड फिफ्थ को डिस्कस करते हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपका मीमांसा में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इनको अभी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अदरवाइज मैं अभी भी ले सकता था, अभी आप फर्स्ट और फिफ्थ समझो। अब देखो वैलिड नॉलेज, देखो अभी इसने वैलिड नॉलेज की मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके लिए, यहां बात कर रहे हैं ना वैलिड नॉलेज की। वैलिड नॉलेज इज नोन एज प्रमा, वैलिड नॉलेज को प्रमा कहते हैं, जो इसके लिए संस्कृत वर्ड है, हमारा जो इंडियन फिलोसफी में यूज होते हैं। वेयर एज इनवैलिड नॉलेज इज नोन एज एप्रमा। देखो नॉलेज ऑफ रोप एज रोप इज प्रमा, अभी मैंने आपको बताया। वेयर एज नॉलेज ऑफ रोप एज स्नेक एज इज एप्रमा। अगर रोप की जगह इफ यू आर perceiving rope as rope then it is pirma, and if you are perceiving rope as snake then that is apirma. तो valid knowledge means when you perceiving rope as rope. Source of pirma is known as pirmana. जो आपको नॉलेज मिलती है वो कैसे मिल रही है, जैसे आप रोप को देख रहे हो, ठीक है, इफ यू आर परसीविंग रोप, तो रोप को आप कैसे देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो ना, तो आंखों से देख रहे हो तो परसीव कर रहे हो। तो जो आपका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है यहाँ पे परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब, परसेप्शन की डेफिनेशन में बोलूं तो परसेप्शन होता है सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। आपका सेंस ऑर्गन कौन सा है, आईज, वो किसके कांटेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट का है आपका रोप, तो रोप को देख के आपकी आईज पे उसकी इमेज बनी, आपने बोला दिस इज रोप। तो यहाँ पे आपका जो प्रमाणा है, प्रमाणा मतलब सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, वो है आपका परसेप्शन। और परसेप्शन से आपको क्या नॉलेज मिली, जो नॉलेज मिली आपको वैलिड नॉलेज, उसको बोलते हैं प्रमा। तो प्रमा इज नॉलेज, valid knowledge, whereas source of prima is known as pramana. तो pramana is source of valid knowledge. So valid knowledge is known as prima and the source of valid knowledge is known as pramana. जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, तो आप मुझे सुन के आप जो आप इन्फर कर रहे हो, ठीक है, आप सुन रहे हो ना मुझे, तो कैसे सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, ऑडिटरी, तो अभी ऑडिटरी परसेप्शन है। और सामने आप स्लाइड्स देख रहे हो, दैट इज विजुअल परसेप्शन। तो आप परसेप्शन का यूज कर रहे हो, विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी परसेप्शन। अभी अगर आपके कान में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे ना, तो आपको नॉलेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। यानी कि जो आपका, और मान लो बीच में आप म्यूजिक सुनने लग जाते हो, तो क्या मेरी बात सुनाई देगी आपको, नहीं सुनाई देगी। यानी जो आपका परसेप्शन है वो जब आपका सही होता है तब आपको वैलिड नॉलेज मिलती है। अगर कोई अंधा है, आंखें ही नहीं है, तो वो चीजों को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा ना। यानी आपको नॉलेज के लिए हमेशा कोई सोर्स चाहिए होता है। जैसे अभी आपको कोई चीज देखनी है तो आंखें चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए, सूंघना है तो आपको क्या चाहिए, नोज चाहिए, टेस्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, टंग चाहिए, और टच से पता करना है तो आपको स्किन जो होती है। तो आपके ये अलग अलग तरह के होते हैं। आईज विजुअल परसेप्शन, ईयर इज योर ऑडिटरी परसेप्शन, ओके, देन योर नोज इज ओल्फैक्टरी परसेप्शन, ठीक है, स्किन इज योर gustatory and your skin is tactual and your tongue is gustatory. Okay, so there are 5 kinds of perception. ये हम आगे जाके आपका डिटेल में चरवा कर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, अगर मेरे रूम में कोई वॉल है, मुझे उस वॉल का कलर पता करना है कैसा, तो मैं आंखों से देख के पता करूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये वॉल व्हाइट कलर की है, तो व्हाइट कलर की है, दैट इज माई नॉलेज। और मुझे कैसे मिली, वो देख के मिली आंखों से, तो हम बोलेंगे विजुअल परसेप्शन। अब कई बार हमें, जैसे रोप है, रोप और स्नेक में हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आंखों से देख के, हाँ ये रोप है, ये स्नेक। तो बेसिकली विजुअल परसेप्शन, अगर हमें, मैं आपको 4 तरह की म्यूजिक सुनाऊं तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, ये म्यूजिक तेज आवाज सुनाऊं, धीमी आवाज सुनाऊं, कुछ नहीं सुनाऊं, आप डिफरेंशिएट कर लोगे किससे, ऑडिटरी परसेप्शन से। तो जो नॉलेज मिलेगी आपको, जैसे मैंने आपको अभी, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फिलॉसफी, तो अभी आपकी फिलॉसफी की नॉलेज मिल रही है, किससे मिल रही है आपको, परसेप्शन से। तो नॉलेज आपको जो मिल रही है ये वैलिड नॉलेज है फिलॉसफी की। मिल किससे रही है आपको, ऑडिटरी परसेप्शन से। तो यू विल से दैट फिलॉसफी, द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी विच आई एम गेटिंग इज माय वैलिड नॉलेज, and the source of valid knowledge is perception in this case. Okay, is it clear? Now relation between knower and knowable. Okay, we are concerned with 2 points, source and relation between knower and knowable. अब knower and knowable का कंसेप्ट आप समझो, देखो इसको अच्छे से समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड इन एवरी फिलोसफर्स थियरी। ये कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चरवाका से लेके और आप रिलीजन तक हम चले जाएं। एक सोशल पॉलिटिकल अलग है, आप डेकार्ड पढ़े, हम लाइबनिज पढ़े, हम मूर पढ़े, हम कांट पढ़े, हम भले से आपका एरिस्टोटल पढ़े, हम भले से आपका चरवाका पढ़े, हम भले से आपका शंकर पढ़े, नोअर एंड नोएबल आपको विल हॉन्ट यू एवरीवेयर।
ओके, सो नोअर का मतलब ये समझिए जिसको नॉलेज मिलती है, ठीक है, उसको कहते हैं ज्ञाता। देखो ध्यान रखो, ये इंग्लिश में जो हमारा है ना ज्ञा, ज्ञा को लिखते हैं JNA, ये जना नहीं है, ये ज्ञा है, ज्ञा, ज्ञाता। तो ज्ञाता उसको कहते हैं वन हु फाइंड्स द नॉलेज। जैसे अभी आपको नॉलेज मिल रही है, यू आर ज्ञाता, यू आर द नोअर। वन हु फाइंड्स द नॉलेज, दैट पर्सन इज नोन एज नोअर। और जिस चीज की आपको नॉलेज मिलती है उसे बोलते हैं नोएबल। तो हमें देखो, आपको ये मेन पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नोएबल। नोअर और नोएबल में कैसा रिलेशन हो सकता है? तो अगर जैसे अभी आपको नॉलेज किसकी मिल रही है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको स्लाइड्स दिख रही है सामने, तो स्लाइड्स की आपको नॉलेज मिल रही है, ये आपके लिए नोएबल है। और नॉलेज मिल किसको रही है? आपको, तो आप नोअर हो। तो नोअर हमेशा वो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकलते ही मैंने कहीं पे पेड़ पौधे देखे, कहीं पे कोई एनिमल्स देखे, ठीक है, कोई ब्यूटीफुल सीनरी देखी कहीं पे, तो वो मेरे लिए सारी चीजें नोएबल है, क्योंकि उनकी नॉलेज मुझे मिल रही है। मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, तो लक्ष्मीकांत मेरे लिए नोएबल है, जो बुक में पढ़ रहा हूँ मैं नोअर हूँ। तो नोअर इज वन हु फाइंड्स द नॉलेज एंड नोएबल इज द ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी फाइंड द नॉलेज। So if a person finds knowledge of rope, then that person is knower, whereas rope is knowable or object of knowledge. तो knowable को हम object of knowledge भी बोलते हैं। Is it clear? ये clear होना चाहिए concept। इस स्लाइड को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, वैसे तो मैंने सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की है। On the basis of relation between knower and knowable, ध्यान दो, knower और knowable, knowable means object of knowledge, two concepts emerged। ये दो कंसेप्ट सबसे मेन है, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर है, रियलिज्म और आइडियलिज्म, देखो आपका पीछा कौन नहीं छोड़ेगा? नोअर, नोएबल, रियलिज्म, आइडियलिज्म, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इस पे सारा खेल है। जैसे आपका होता नहीं है मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर हो जाती है। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर है। अब रियलिज्म समझो। रियलिज्म का मतलब है व्हेन नोएबल है सेपरेट, डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया SDI, सेपरेट, डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम नोअर। समझो बात को, तीनों चीजें होनी चाहिए, सेपरेट, डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, अब जैसे अभी आप आपके रूम में बैठे हो, कहीं पे भी आपके सामने आपकी या मोबाइल की स्क्रीन है, या फिर मोबाइल है या लैपटॉप है, तो आप अलग बैठे हो, आपका लैपटॉप अलग है, तो आप बोलोगे कि लैपटॉप आपसे सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि आप रियलिस्ट हो। रियलिस्ट का मतलब जब आपके ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज आपसे सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरे घर में AC है, तो AC को मैं बोलूंगा कि AC मेरे से सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, तो मैं बोलूंगा मैं रियलिस्ट हूं। तो अधिकतर लोग रियलिस्ट होते हैं। रियलिस्ट का मतलब जो ये मानता है कि जो नॉलेज, जिस चीज की उसे नॉलेज मिल रही है वो उससे सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। वो ये नहीं सोचता कि वो उसके माइंड की उपज है या उसके माइंड ने क्रिएट किया है। उसके हिसाब से पानी का गिलास है वो उससे सेपरेटली है, लैपटॉप है वो उससे सेपरेट, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो आपका AC है वो उससे सेपरेट, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मतलब हम सब अधिकतर रियलिस्ट है। आप कभी ऐसा थोड़ी ना सोचते हो कि आपके सामने लैपटॉप है, आप ऐसा थोड़ी ना सोचते हो कि लैपटॉप आपकी दिमाग की उपज है, लैपटॉप है ही नहीं। आप यही तो मानते हो कि लैपटॉप अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है, आप अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हो। तो हम सब रियलिस्ट है, अधिकतर लोग। तो रियलिस्ट वो होता है जो ये मानता है कि नोएबल अलग एग्जिस्ट करता है और नोअर अलग एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में सेपरेट, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दूसरी चीज रियलिज्म में ये है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो ये है, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख दूंगा आप स्लाइड में आगे। दूसरा पॉइंट ये है कि वी फाइंड नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इन रियलिज्म वी फाइंड नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। समझो, अगर आपके सामने लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप ही दिखना चाहिए, तब आप रियलिस्ट हो। आपके सामने अगर पानी का गिलास है तो आपको पानी का गिलास ही दिखना चाहिए। अगर आपके सामने AC है तो आपको AC दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके सामने लैपटॉप है उसकी जगह आपको पानी का गिलास दिख रहा है, तब आप रियलिस्ट नहीं हो गए। रियलिस्ट में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आपसे सेपरेट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सेकंड थिंग इज यू मस्ट फाइंड नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, रोप है तो रोप ही दिखना चाहिए। अगर रोप की जगह कुछ और दिख रहा है तो आप रियलिस्ट नहीं हो, फिर तो आप आइडियलिस्ट हो जाओ। तो बेसिकली रियलिस्ट में दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये दो कंडीशन पे पूरी फिलॉसफी चलेगी आपकी। पहली, आपका ऑब्जेक्ट सेपरेट, डिफरेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको ऑब्जेक्ट की जगह वही ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, दैट इज रियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है? आइडियलिज्म में हम ये मानते हैं कि जो आपका नोएबल है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, उसकी सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है नोअर से।
मतलब यहाँ पे कमाल है आपका आइडियलिज्म में। आइडियलिज्म आप क्या मानते हो कि जो चीज आपको दिख रही है वो आपके आइडियाज है। और आइडियलिज्म आपके कौन मानते हैं? दो फिलोसफर आपके जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इंडियन में, एक शंकर है, दूसरा बुद्धिस्ट। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं बुद्धिज्म और शंकर जो है दोनों फिलोसफी बहुत हाई लेवल की फिलोसफी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आइडियलिज्म क्या होता है? जैसे कई बार आप आइडियाज क्रिएट नहीं कर लेते हो माइंड में। किसी आपने गए, आपने कोई जैसे कोई लड़का है, उसने कोई सुंदर लड़की देखी, अब वो घर पे आके वो उसके देख के मुस्कुरा दी। अब वो घर आके क्या करेगा? माइंड में आइडियाज क्रिएट कर लेगा, अरे आज तो मुस्कुराई, मतलब कुछ हो सकता है कुछ नहीं वहां पे, आपने आइडियाज क्रिएट कर लिया। ऐसे कई बार आप ख्यालों में ताना बाना बुल लेते हो, सामने कुछ नहीं होता है, आपको वही दिख रही है, लेकिन वो क्या रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, उस समय नहीं रहती एग्जिस्ट। आप सपने बुल लेते हो, वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं। ऐसे ही आइडियलिस्ट फिलोसफर्स क्या है, वो ये मानते हैं कि हमारे सामने जो चीजें ये हमारे माइंड के आइडियाज है। उनके हिसाब से लैपटॉप इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे आइडियाज वहां पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, असल में लैपटॉप है ही नहीं। मतलब मुझे लैपटॉप इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा माइंड आइडियाज को प्रोजेक्ट इस तरीके से कर रहा है। जैसे आपका मान लो मैं बोलूं कि पानी का गिलास, आइडियलिस्ट क्या बोलेगा? पानी का गिलास मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे माइंड ने आइडियाज वहां पे इंपोज किए हैं, पानी के गिलास का शेप इंपोज कर दिया, साथ में उसका कलर इंपोज कर दिया, तो मुझे पानी का गिलास दिख रहा है। सामने मान लो बोर्ड है आपके, अब बोर्ड में आपको दिख रहा है मान लो व्हाइट कलर का बोर्ड है, तो हम बोलेंगे, आइडियलिस्ट क्या बोलेगा कि ये व्हाइट कलर का बोर्ड है तो मेरे माइंड ने आइडियाज इंपोज किए है, रेक्टेंगुलर, व्हाइट कलर, शार्पनेस, ब्राइटनेस, तो वहां बोर्ड आ गया। अगर मैं इससे आइडियाज को सेपरेट कर दूं तो वहां पे बोर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी आइडियलिस्ट जो फिलोसफर्स होते हैं उनके हिसाब से जो आपके मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, दे हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम आवर माइंड, दे आर बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ आवर आइडियाज। उनके हिसाब से सब कुछ आइडियाज है, नथिंग हैज सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम आवर माइंड, एवरीथिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आवर आइडियाज। क्या आप ये बात मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आइडियलिस्ट होना बहुत मुश्किल है। आप तो हमेशा यही मानोगे ना कि भाई लैपटॉप है तो लैपटॉप है वहां पे। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे ये मेरे आइडियाज है, लेकिन कुछ फिलोसफर्स ने अपनी थियरी दी है कि भाई ये जो मुझे लैपटॉप इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरे आइडियाज है। और वो एग्जाम्पल भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मान लो मेंटली इल है पर्सन, अब मेंटली इल पर्सन है तो हो सकता है उसको हेलुसिनेशंस होते हैं। मेंटली इल पर्सन को तो उसको एसी की जगह हो सकता है एसी की जगह कुछ और चीज दिखाई दे, तो वो बोलते हैं देखो उसको भी तो दिख रहा है ना। उसको क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके एसी के जो आइडियाज है उसकी जगह दूसरी चीज के आइडियाज इंपोज हो रहे हैं। तो बेसिकली जो आइडियलिस्ट हैं ये अपनी थियरी देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इनकी कोई साउंड थियरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग रियलिस्ट हैं। अब आप अगर किसी आइडियलिस्ट से पूछो कि भाई तेरे सामने खाना रखा है, अगर ये खाना तेरे लिए मतलब कि तेरे आइडियाज ही है, तो फिर तू अपने आइडिया से कोई भी तरह का खाना क्रिएट करके खा ले। और आइडियलिस्ट अगर रेगिस्तान में खो गया, हम बोलेगा अपने आइडियाज से तू पानी क्रिएट कर ले और पी ले, तो वो पॉसिबल है? नहीं ना। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी चाहिए ना, आइडिया से थोड़ी ना प्यास बुझ जाएगी। तो आइडियलिज्म जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आइडियलिज्म जो है हमारे कुछ ही फिलोसफीज में देखने को मिलेगा, और जहां जहां वो देखने को मिलेगा वो फिलोसफी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। जो नहीं क्लियर हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और मैंने लिखा भी है, मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स आर रियलिस्ट इन नेचर। ओके, देखो अब इंडियन फिलोसफी में देर आर 6 प्रमाणास। प्रमाणास मीन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना, लक्ष्मीकांत से अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है, लक्ष्मीकांत इज योर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। पहला सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है परसेप्शन। परसेप्शन को बोलते हैं प्रत्यक्ष, ये याद रखना है। इनफेरेंस, इनफेरेंस को बोलते हैं अनुमाना। थर्ड इज वर्बल टेस्टिमोनी, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाणा। फोर्थ इज कंपेरिजन, उसको बोलते हैं उपमाना। फिफ्थ इज इम्प्लीकेशन और पोस्टुलेशन, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। एंड लास्ट इज नॉन एप्रीहेंशन, उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। ओके, तो ये 6 प्रमाण है। ये 6 प्रमाण से हमको नॉलेज मिलती है। जैसे मैं आपको एक लेके समझाता हूं अभी, परसेप्शन। ओके, परसेप्शन लेके मैं मान लो आपको समझाता हूं अभी आप ऐसे ही सारे के सारे हम धीरे धीरे फिलोसफर्स आपके कवर होंगे, आपको सारी चीजें समझ आती जाएंगी। अभी एक जगह पे मैं अभी इंट्रोडक्शन में सारी चीजें नहीं लूंगा, चरवाका जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपके ये 4 क्लियर हो जाएंगे, फिर हम मीमांसा में जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप ऐसे समझो, परसेप्शन अभी आप क्या कर रहे हो, कैसे नॉलेज मिल रही है आपको? आंखों से देख रहे हो ना, कानों से सुन रहे हो, तो ये परसेप्शन है। परसेप्शन 5 तरह का हो सकता है, मैंने बताया आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आप देख लो, किसी अगर आपने गर्म चीज है कोई, उसको टच किया, तुरंत आपको पता चल जाएगा गर्म है, आप हाथ हटा लोगे। ठंडी चीज आपने डाली मुंह में, आपको तुरंत पता चल जाएगा ठंडी है।
आपने नमक लिया तो जीभ आपकी तुरंत बता देगी कि नमक है, आपने ज्यादा तीखा खा लिया जीभ तुरंत बता देगी। यानी परसेप्शन क्या है, परसेप्शन के लिए सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट जरूरी है, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। अभी आपके सामने ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी ये स्लाइड जो आपको दिख रही है, और आपकी आंखें इसके कांटेक्ट में आ रही है, तब आपको नॉलेज मिल रही है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो जब आपके कानों पे पड़ रहा है तब आपको नॉलेज मिल रही है। ऐसे ही अगर आप किसी चीज को टच करोगे तो वो आपका स्किन उसको टच कर रही है तो आपको वो टेक्चुअल परसेप्शन मिलेगा। टंग से कुछ चीज टेस्ट करोगे, गस्टेटरी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई चीज सूंघोगे कहीं पे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस चीज की स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल है, ठीक है, पंजेंट स्मेल है, या बैड ऑर्डर है, या फिर आपकी प्लेजेंट स्मेल। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है, तो इनसे नॉलेज मिलती है हमें, तो उसे कहते हैं परसेप्शन। तो अब आप सोचो जितने हमारे फिलोसफर्स हैं, आपके चरवाका से लेके शंकराचार्य तक, इन्होंने परसेप्ट, इनमें से कोई ना कोई अपना सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना होगा। किसी ने 1 माना है, किसी ने 2 माने, किसी ने 3 माने, किसी ने 4 माने, किसी ने 5 माने, किसी ने 6 माने। अब इसमें खास बात यह है, अगर ये ऑर्डर में किसी ने 1 माना है तो उसने परसेप्शन माना है, किसी ने 2 माने तो फर्स्ट 2, किसी ने 3 माने तो फर्स्ट 3, किसी ने 4 माने तो फर्स्ट 4। इफ समवन हैज एक्सेप्टेड 5 फर्स्ट 5, समवन हैज एक्सेप्टेड 6 फर्स्ट 6। तो इस तरह से, ऐसा नहीं है किसी ने नॉन एप्रीहेंशन मान लिया डायरेक्ट, नहीं, ये ऑर्डर में, यानी ये लैडर है। आपको जब पहला माना है तो पहला आपको ऑर्डर में है परसेप्शन। अगर हम बोले कि चरवाका ने 1 ही माना है तो हम बोलेंगे उसने परसेप्शन माना है। हम बोले किसी फिलोसफर ने 3 माने तो हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दे आर इन ऑर्डर। तो परसेप्शन आपको क्लियर हो गया। अब सोचो, आप अगर मान लो आप सिर्फ परसेप्शन को ही सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानते हो, जैसे आपने परसेप्शन का मतलब क्या है, जो चीज आप परसीव कर सकते हो, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं, आप गॉड को फिर मानोगे क्या? क्या गॉड को आप देख सकते हो, गॉड को आप सुन सकते हो, गॉड को आप स्मेल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, यानी आप परसेप्शन से गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आपने परसेप्शन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है तो आप गॉड को नहीं मानोगे। तो बेसिकली आप, गॉड किसका पार्ट हो गया? मेटाफिजिक्स का। और आपका परसेप्शन किसका पार्ट हो गया? इपिस्टेमोलॉजी का। तो ये रिलेटेड है। अगर आपने परसेप्शन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है तो गॉड को आप मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते। परसेप्शन के बेसिस पर आप गॉड को प्रूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो बेसिकली इपिस्टेमोलॉजी में आपने क्या माना है उसका इंपैक्ट आपकी मेटाफिजिक्स पे भी आता है। तो यही चीजें हमारी हैं जो रिलेट करती हैं। तो कोई फिलोसफर, जैसे चरवाका हम पहला फिलोसफर पढ़ेंगे ना, उसने सिर्फ परसेप्शन को माना है। चरवाका क्या बोलता है? जो चीज मैं देख सकता हूं, जो चीज मैं सुन सकता हूं, अपने से मैं चीजों को जो कर सकता हूं प्रूव, जो उन्हीं चीजों को मैं मानूंगा। तो चरवाका गॉड को देख सकता है क्या? नहीं देख सकते। आप गॉड को, सोल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हेवन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हेल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। लिबरेशन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। चरवाका ने इन सबको रिफ्यूट कर दी। सिंपल सी फिलॉसफी है। यही चीजें हमें पढ़नी है। तो चरवाका ने सिर्फ पहला आपका जो माना है, फर्स्ट फर्स्ट माना है। इसके बेसिस पे क्या किया उसने? जो चीज इसके बेसिस पे नॉलेज मिलेगी। अब जगत है आपका, वर्ल्ड, क्या वर्ल्ड आप परसीव कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो चरवाका ने वर्ल्ड को माना है। यानी चरवाक, जो आपने एपिस्टेमोलॉजी में कौन सा सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना, उसका इंपैक्ट आपकी मेटाफिजिक्स पे आता है कि आप गॉड को मानते हो नहीं मानते, सोल को मानते हो नहीं मानते, हेवन को मानते हो मानते, हेल को। तो बेसिकली ये जो 6 पैमाना है, हर फिलोसफर ने इनमें से कुछ ना कुछ माना है, उसी के बेसिस पे उसकी थियरी। क्यों? क्योंकि जैसे आपने माने पैमाना, जैसे मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी पॉलिटी की, और मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी, दुर्गा दास बसु भी पढ़ी, बेयर एक्ट भी पढ़ा। अब किसकी नॉलेज ज्यादा होगी, आपकी या मेरी? मेरी ज्यादा होगी ना, मैं ज्यादा चीजों के बारे में बोल पाऊंगा। ऐसे यहां पे अगर आपने सिर्फ एक ही पैमाना माना पहले ही, तो आप पहले के बेसिस पे कुछ ही चीजों को आप मान सकते हो ना, बाकी चीजें तो आपको रिफ्यूट करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो मैंने आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, मैंने मान लो 10 बुक पढ़ी है, आपने एक ही पढ़ी, या फिर आपने एक भी नहीं पढ़ी, आप कुछ बोल पाओगे उस पर? नहीं, मैं बहुत कुछ बोल पाऊंगा। तो आपने जिस हिसाब से पैमाना माने उस हिसाब से आपकी नॉलेज है। तो इंडियन फिलोसफी में ये 6 पैमाना होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आपका फिलोसफर आता जाएगा। जैसे चरवाका ने सिर्फ पहला ही माना है, बाकी सबको रिफ्यूट कर दिया, और इसलिए चरवाका बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर है। क्योंकि इंडियन फिलोसफी में हर फिलोसफर ने कम से कम 2 माने, पहले और दूसरा। एक चरवाका ही ऐसा नवाब है जिसने सिर्फ पहला माना है। ओके, अब आपके वेस्टर्न फिलोसफी में, अभी हमने इंडियन का कर लिया डिस्कस, वेस्टर्न फिलोसफी में सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज देखो, इंडियन में 6 है, वेस्टर्न फिलोसफी में 2 है, रीजन एंड एक्सपीरियंस। रीजन का मतलब क्या है? जो नॉलेज आपकी मैथमेटिक्स से मिलती है, और एक्सपीरियंस जो नॉलेज आपकी साइंस से मिलती है। मैथमेटिक्स से आपको कैसी नॉलेज मिलती है? 2 और 2 4। साइंस से कैसे मिलती है? साइंस से आपको ऐसी मिलती है जैसे कि आपका वाटर इज हॉट, ठीक है, पानी आपका गर्म है।
अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करोगे तो पानी आपका क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। यानी ऐसी नॉलेज मिलती है जो आपकी नई नॉलेज होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। लेकिन साइंस की नॉलेज क्या आपकी चेंज होती रहती है, बिल्कुल चेंज होती रहती है। यानी जो आपसे रीजन से नॉलेज मिलती है, मैथमेटिकल नॉलेज, वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे 2 और 2 4 है, आज भी 4 है, कल भी 4 है, परसों भी 4 होंगे, इंडिया में भी 4 है, यूएस में भी 4 है, चांद पे भी 4 है, सब जगह पे 4 है। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें 2 तरह के फिलोसफर्स है, एक जिन्होंने रीजन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है, एक जिन्होंने एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है। जिन्होंने रीजन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है उनको बोलते हैं रैशनलिस्ट फिलोसफर्स, और जिन्होंने एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है उनको बोलते हैं इंपेरिसिस्ट फिलोसफर्स। दोज फिलोसफर्स, यहाँ देखिए पढ़िए, दोज फिलोसफर्स हु एक्सेप्ट रीजन एज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज आर नोन एज रैशनलिस्ट। अब रैशनलिस्ट है तो इनकी फिलोसफी कैसी होगी, इनकी नॉलेज कैसी होगी, मैथमेटिकल जैसी, सर्टेन, अनडाउटेबल, 2 और 2 4 जैसी, ठीक है। Those philosophers who have accept experience as the source of valid knowledge are known as empiricist, ठीक है, ओके, क्लियर। ये आगे डिटेल में आपका आएगा वेस्टर्न में। अब देखो ये मैंने दोनों में आपके लिए डिफरेंस लिखे हैं। रैशनलिस्ट फिलोसफर के हिसाब से रीजन इज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, एम्पिरिसिस्ट के एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। दे आर इंप्रेस्ड बाय मैथमेटिक्स, दे आर इंप्रेस्ड बाय साइंस। नॉलेज इज यूनिवर्सल, देखो आपको मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल नॉलेज मिलती है ना, 2 और 2 4, यहाँ पे भी हर जगह। सर्टेन, आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि भाई 2 और 2 4 ही होंगे। एंड नेसेसरी, नेसेसरी नॉलेज का मतलब ये होता है कि अगर उस नॉलेज को आप निगेट करोगे इट विल लीड टू कॉन्ट्रडिक्शन। ए नेसेसरी नॉलेज इज दैट नॉलेज विच इफ कॉन्ट्रडिक्टेड इट लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जांपल आप बोलो 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 5 होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। आप किसी को बोलोगे कि 2 और 2 5 होते हैं, वो आपको थप्पड़ मारेगा, बोला अरे 2 और 2 तो 4 ही होते हैं, पागल है। यानी इसको आप निगेट नहीं कर सकते। तो ये आपकी नॉलेज क्या होती है, ऐसी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूनेस नहीं होती इस नॉलेज में। 2 और 2 4 में कोई न्यूनेस है, कल भी 2 और 2 4 था, आज से 100 साल बाद भी 2 और 2 4 होगा। तो 2 + 2 इज ऑलवेज 4, कोई न्यूनेस नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, कोई न्यूनेस नहीं है। एक स्क्वायर हैज 4 साइड्स, कब से 4 साइड्स है उसमें, ओके। तो वही वाली बात है, सर्किल का एरिया πr² हमेशा से वही है, कभी चेंज नहीं होगा, कोई भी सर्किल हो, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या, नॉलेज हैज न्यूनेस, न्यूनेस होती है ना, हर नॉलेज आपको साइंस में जो मिलती है न्यू होती है। बट प्रॉब्लम रिगार्डिंग यूनिवर्सलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। जैसे मान लो मैं साइंस में बोलता हूं, जैसे साइंस यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस से नॉलेज मिल रही है। जैसे मान लो अभी आप बैठे हो, आपके सामने कोई आपके रूम की वॉल है, उसका कलर मान लो व्हाइट है, तो उस व्हाइट कलर को देख के आप बोल सकते हो कि वॉल आपकी हमेशा जो होगी, ऑल वॉल्स आर व्हाइट इन कलर। क्या आप बोल सकते हो सारी वॉल जो होंगी वो व्हाइट होगी? नहीं ना। आप दूसरे रूम में जाओगे अपने में, तो उसका कलर अलग कलर का कलर होगा। आप उसको कैसे बता पाओगे? देख के बता पाओगे, एक्सपीरियंस करके बता पाओगे। लेकिन अगर आप इस रूम में बैठे हो, मैं आपसे बोलूं 2 और 2 कितने हो गए, आप कहीं चले जाओ, आपसे पूछो 2 और 2 कितने हो गए, नींदों में पूछो 2 और 2 कितने हो गए, आप बोलोगे 4 हो गए। क्योंकि वो आपकी कैसी है, सर्टेन नॉलेज है, अनडाउटेबल नॉलेज है, हमेशा वही रहने वाली है। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी आपने जो टी शर्ट पहन रखी है उसका कलर क्या है, क्या आप बिना देखे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। आज आपने अलग कलर की टी शर्ट पहन रखी होगी, कल अलग कलर की टी शर्ट पहन रखी होगी। साइंस भी ऐसे ही काम करती है, साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, नई नई चीजें लेके आती है, ओके। जैसे साइंस पहले बोलती थी डीडीटी यूज करोगे तो आपके सारे मॉस्किटोज वो मर जाएंगे, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता है क्या? तो साइंस ने अपना चेंज कर दिया। साइंस किस पे काम करती है? एक्सपीरियंस पे। तो एक्सपीरियंस का मतलब है जब आप चीजों को देख के, ऑब्जर्व करके आंसर करते हो। लेकिन रैशनलिज्म का मतलब सीधे आपके माइंड से आ रहा है, 2 और 2 4 आपके दिमाग में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी दीवार का कलर क्या है, आपके पीछे की दीवार का कलर क्या है, आपको देखना पड़ेगा, ओके। आप ये नहीं कह सकते कि पीछे आपकी दीवार, मान लो आप आज आप बैठे हो, आपकी व्हाइट है, आप घर से गए, आपके घर वालों ने उस पर दूसरा कलर करवा दिया, आप आए, आपसे मैंने बाहर पूछा कि क्या कलर है, आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, आपको आके देखना पड़ेगा। यानी एक्सपीरियंस, जैसे मैं आपको, अभी आप बैठे हो, आपसे मैं बोलूं आपके रूम के बाहर में एक टाइगर खड़ा है, आप मानोगे मेरी बात? जब तक आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, आप मान नहीं सकते ना। क्योंकि ये आपकी कैसी नॉलेज है? एक्सपीरियंस से आ रही है। तो एक्सपीरियंस वाली नॉलेज आपकी नई नॉलेज होती है। तो 2 तरह के फिलोसफर है, आप समझ जाओ। रैशनलिस्ट वो जो बेसिकली ये मानते हैं कि सारी नॉलेज हमारे माइंड से आती है, 2 और 2 4 जैसी होती है। इंपेरिसिस्ट वो होते हैं जिनके हिसाब से सारी नॉलेज बाहर से आती है, नई नॉलेज होती है। तो ये देखो, रैशनलिस्ट को किससे कंपेयर कर सकते हैं? स्पाइडर से। जो आपकी स्पाइडर होती है ना, मकड़ी, वो अंदर ही अंदर जाला बुनती है, अगर आपने देखा हो। और इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? एंट से। तो एंट क्या होती है? आपकी बाहर से लेके आती है सारी चीजें।
इसके सपोर्टर कौन है? रैशनलिस्ट में मैंने आपको बताया 3 फिलोसफर है, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2 और 4 मैं बता चुका हूँ। इसमें सपोर्टर से लॉक, बर्कले, ह्यूम। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, इनको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड इज व्हाइट इन कलर। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो, आपके सामने बोर्ड है व्हाइट कलर का है, तो आपसे मैं पूछूं बोर्ड कैसे कलर का है, तो आप बोलोगे व्हाइट कलर का है। अब आप मान लो क्लास से चले गए, मैंने आपसे बाहर पूछा कि बोर्ड कैसे कलर का है, तो आप बता सकते हो बोर्ड कैसे कलर का है। हो सकता है आपके जाने के बाद मैंने बोर्ड का कलर चेंज कर दिया हो। यानी वो चीज आपको देख के ही आपको पता कर सकते हो, लेकिन आप दौड़ दो आज कल परसों, उसके लिए कोई आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, आपने जो कपड़े पहन रखे, मैं पूछूं किस कलर की टी शर्ट पहन रखी है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि रोज आप एक कलर की थोड़ा ना पहनते हो, जिंदगी भर एक कलर की थोड़ा ना पहनोगे टी शर्ट। वो तो आपका डेली चेंज हो रहा है, वो उसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं ये पानी गर्म है या ठंडा है, आपको पी के उसको बताना पड़ेगा। मैं बोलूँ ये पानी सॉल्टी है, स्वीट है, आपको पी के बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाली चीज है। तो जिन्होंने ऐसी नॉलेज को माना है वो आपके एम्पेरिसिस्ट कहलाते हैं, जिन्होंने आपके मैथमेटिकल टाइप नॉलेज को माना है वो आपके रैशनलिस्ट कहलाते हैं। ओके, अब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी यहाँ तक, आज हम यहीं तक खत्म करते हैं। ओके, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी है, इससे अगला वाला ये, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।